नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुकी हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हुड्डा सेक्टर 20 में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जो है नोटिस जारी किया गया था कि जो हुड्डा सेक्टर्स के हैं, चाहे 20 सेक्टर की बात करें, 19 सेक्टर की बात करें या हुड्डा के जितने भी सेक्टर हैं, ब्लॉक हैं, उनमें अतिक्रमण हटाने को लेकर के जिन लोगों ने ग्रिल लगा करके, जिन लोगों ने शेड बना करके जो अतिक्रमण कर रखा था, उन पर जो है शिकंजा हुड्डा विभाग ने कसना था, जिसको लेकर के हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो अब आगे आई है। उन्होंने कहा है कि वो अधिकारी तौर पर उनको जो है जानकारी दे दे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं बना सकते। तो एक मीटिंग हो जाए इस मामले को लेकर के, और हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर ने भी सहयोग मांगा है। हमारे साथ इस वक्त हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं राजपाल सिंह, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से अब कई दिनों से कार्रवाई चल रही है, जो कोर्ट के भी आदेश थे कि ये ग्रिल तोड़ी जाएंगी, क्या कुछ है, अब हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर भी आगे आई है कि हम अपने लेवल पे ये कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो जिसने जो अवैध रूप से जो बना रखा है। लेकिन अभी पेच क्या है, अधिकारियों से किस तरह की बातचीत है, अधिकारियों का रवैया है वो किस तरह का है, क्या कहेंगे? प्रमोद जी, सब तो पहला तो मैं द सड़कनामा.com टीम का ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮਹਿਕਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਤੀਕਰਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਤੀਕਰਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਅਤੀਕਰਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਮੂਵ। ਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਐਕਸ ਐਮਪੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇ ਜੱਗਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਸਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਸਡੀਓ, ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਡੀਓ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜੋ ਤੋੜਨਗੇ, ਧੜਾ ਧੜ ਗੰਦ ਵੀ ਫੈਲੂਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ की कुछ रिमूव करना है। एक बात बीच में आ रही है कि जहां आपने बताया कि ट्री गार्ड तौर पे लगाई हुई है और अंदर जो है हरे वृक्ष भी लगे हुए हैं भी कहीं और उनको नुकसान ना पहुंचे। दूसरा एक जो ग्रीन बेल्ट में जो ग्रीन बेल्ट का एस्टीमेट भी वहाँ डिपार्टमेंट के पास गया हुआ है, कहीं उसको लेकर के भी आउटर ग्रीन बेल्ट। हाँ, ये आपने बात फिर मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इन्वॉल्व रहते हो
भी ये आउटर ग्रीन बेल्ट है ना, जो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती अगर महकमा पार्ट 1 और 2 की तरह टो वाल बना के वो ग्रिल लाइक वो ग्रिल नहीं है, उसका एग्जांपल नहीं दे सकता, पार्ट 1 2 में लगी हुई है, तो वो एक तरह का इनक्लोजर बन गया। उसी बेस पे हमने एस्टीमेट भिजवाया हुआ है ग्रीन आउटर ग्रीन बेल्ट का। अगर वो ग्रीन बेल्ट टो वाल लग के वो लगभग 5 फुट ऊंची बन जाती है, वो हो जाए तो आवारा पशुओं का आना बंद हो जाएगा। जो गेट है, गेट एसोसिएशन लगाने के लिए तैयार है, यानी कि हुड्डा सेक्टर Gated गेटेड सोसाइटी हो सकती है अगर है। ग्रीन बेल्ट कवर हो जाए। हाँ, और वो दरखास्त है, मैंने एसडीओ साहब से भी कहा, जब आपको हायर अथॉरिटीज आपसे मीटिंग लेती है रिगार्डिंग दिस रिमूवल ऑफ ग्रिल्स, तो वहाँ एक सेक्टर वासियों के लिए भी एक राहत की बात होगी। और आपसे भी गुजारिश है, आप चैनल के रास्ते रिक्वेस्ट करो, और मैं भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हायर अथॉरिटी से, वो हमारा एस्टीमेट क्लियर हो जाए, ग्रीन बेल्ट कवर हो जाए, और वो एक सैरगाह भी बनेगी। उसमें 10-10 फुट के दोनों तरफ अगर फुटपाथ बनाए जाए और बीच में 100 फुट की ग्रीन बेल्ट है, तो और पशुओं का आना इससे बंद, वो जो गेट लगा देंगे उससे बंद हो जाएगा, और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी हम ये नहीं कहते भी हम वो करो तो ये करो, वो रिक्वेस्ट है, वो करना बनता है। बहुत पैसा है महकमे के पास, अब वो पैसे की कमी वाली बात नहीं है। और ये चीज़ें आवाजावी के लिए जो लगता है भी ये ग्रिल्स लगी, ये ठीक है, नो डाउट भी आवाजावी के लिए बाधित तो करती है, तो रिमूव होनी भी चाहिए। कि लोग आगे आए हैं, आगे आए रेजिडेंट हुए। वेलफेयर आगे आए हैं कि हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, सरकार का भी पैसा बचेगा, समय बचेगा, और हमारा भी जो है आर्थिक तौर पे नुकसान ना हो। हाँ। तो उसको लेकर के गाइडलाइन बना दी जाए, मीटिंग की जाए, ताकि जो है ये चीजें जो है ना हो सके। सुंदरता भी बहाल रह जाएगी। सेक्टर इतना सुंदर बनाया लोगों ने, बहुत योगदान है, नहीं तो ये बंजर था। अगर इसी तरह ही छोड़ दिया ना इनको रिमूव करके, अभी से बंजर हो जाएगा। फिर मैं गुजारिश करता हूँ आरडब्ल्यूए की तरफ से, सेक्टर वासियों की तरफ से, हमारी ग्रीन बेल्ट को कर दें, गेट हम लगा देंगे तो ये गेटेड सेक्टर बन जाएगा। और ये ग्रिल्स हम खुद अब भी करेंगे, पर उससे हो जाए साथ साथ। तो एस्टीमेट वर्क्स कमेटी से एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बड़ी देर का, पर महकमा हार्टिकल्चर कुछ भी नहीं कर रहा है। ये एक शिकायत भी है, हमारी शिकायत भी है। तो इस ग्रीनरी को, इतना सुंदर सेक्टर को बच जाएगा अभी भी अगर वो ग्रीन बेल्ट कर देते, और हम इसको महकमे से कोई अपना कोई विरोधाभास किसी तरह का नहीं बनेगा, और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे माहौल में ये रिमूव भी हो जाएंगी। और इसका एक और भी बात मैं सेक्टर वासियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भी, मैंने रिक्वेस्ट ये भी की थी, जो पौधे बड़े हो गए इस ग्रिल में वो तो बच गए, उनको पशु भी नहीं गए, पर कुछ पौधे छोटे हैं अभी, उनमें इंडिविजुअल ट्री गार्ड छोटे, ये तो मेन ग्रिल हट जाएगा, छोटे ट्री गार्ड भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एसडीओ और जेई से। मैं कहा यार ये अपने हायर अथॉरिटी से, छोटे ट्री गार्ड तो इनके खुद के भी लगे हुए, तो उस तरह के ट्री गार्ड लग के सुंदरता बहाल रह जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं हाई कोर्ट के आर्डरों का तो हम स्वागत करते हैं, उसका मान्य करना ही पड़ेगा और कर लेना चाहिए, और ढंग से हो जाए तो अच्छा है। बहुत धन्यवाद। बहुत तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और क्या कुछ राय है आपकी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।